السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب زدني علما۔ میرے دینی ملی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آپ کو اس دینی و اصلاحی پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع فراہم فرمایا۔
اللہ رب العالمین کی ہر قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی ہو، جس نے ہم بنی ہوئے انسانوں کو پیدا کیا اور وہ پیدا کرنے کے بعد یوں ہی رائے گاہ نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری کامیابی، ہمارے رہنمائی کے لیے بے شمار لاتعداد نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو، خصوصاً پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، یہ جو پروگرام کا انعقاد کیا گیا، رکھا گیا ہے، یہ خاص طور سے کہ ہمارے محلے کے اندر اصلاح ہو جائے، جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں پائی جاتی ہیں، اس کے اندر اصلاح اور سدھار پیدا ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ دین کا بھی کام ہو جائے، اللہ کے گھر کے لیے بھی کچھ امداد ہو جائے، جس کے لیے پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ لوگ خاص طور سے اس کا، میرے بھائیوں، کچھ چند باتیں میں آپ کے سامنے تقویٰ کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں۔ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ تقویٰ کا معنی ہوتا ہے گناہوں سے بچنا۔ تقویٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بچنا، گناہوں سے بچنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا جو روزہ فرض کیا، اس کا مقصد بتایا کہ روزے داروں کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، پرہیزگاری آ جائے، وہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، گناہوں سے بچنے لگے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہ ایمان والے اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا ہے، جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ کوئی نئی چیز، انوکھی چیز نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو یہ روزہ فرض کیا گیا، اور مقصد کیا بتایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ہمارے نوجوان بھائیوں نے بھی اللہ کی راہ میں تعاون کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول۔ تو روزے کا مقصد کیا؟ تقویٰ آ جائے، آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، پرہیزگاری آ جائے، جس طرح سے رمضان مبارک کے مہینے میں آپ گناہوں سے بچتے رہے، حرام چیزوں سے بچتے رہے، اسی طرح سے آپ حرام چیزوں سے، برائیوں سے، گناہوں سے غیر رمضان میں بھی اگر بچتے رہے، اجتناب کرتے رہے، سمجھ لیجئے آپ کے اندر تقویٰ آ گیا، آپ تقویٰ شعار والا بن گئے، آپ متقی اور پرہیزگار بن گئے۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری آ جائے، یعنی روزے رکھنے والے متقی اور پرہیزگار بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقصد بتلایا، آپ اس مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ آپ رمضان مبارک کے 30 روزے مکمل رکھیں، آپ متقی اور پرہیزگار بن گئے ہیں، آپ گناہوں سے بچنے لگے ہیں۔ آپ رمضان مبارک میں گناہوں سے بچتے رہے، غیر رمضان میں بھی 11 مہینوں میں بھی آپ کو گناہوں سے بچتے رہنا ہے، حرام چیزوں سے بچتے رہنا ہے۔ میرے بھائیوں، تقویٰ کی تعریف یہ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنے والوں کو متقی کہا جاتا ہے۔ سلف نے تقویٰ کی تعریف یوں کیا ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کو بھولا نہ جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کیا جائے۔ تقویٰ والے متقی جو ہوتے ہیں وہ رب کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، رب کی باتوں کو مانتے ہیں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، معصیت کے کام نہیں کرتے ہیں، گناہوں کے کام نہیں کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کی ناشکری نہیں کرتے۔ اللہ جو عطا فرماتا ہے اپنی نعمتوں سے اپنے بندوں کو سرفراز فرماتا ہے، اس میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ متقی لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، بھولتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک اور جامع تعریف سنیے
इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कुर्तुबी के अंदर नकल करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला हजरत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु तआला से सवाल करते हैं, उबय बिन काब मुझे तकवा बताओ, तकवा किसे कहते हैं? उबय बिन काब रज़ियल्लाहु तआला हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला से सवाल करते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन मेरा ये सवाल आपसे, कभी आपका गुजर ऐसे रास्ते से हुआ है जो तंग है, कुशादा नहीं है, चौड़ा नहीं है, वसी नहीं है, और उस रास्ते के दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां है? ए अमीरुल मोमिनीन कभी आपका गुजर ऐसे रास्ते से हुआ है? अमीरुल मोमिनीन फौरन जवाब देते हैं, ए उबय बिन काब इस ऐसे रास्ते से मेरा कई मरतबा गुजर हुआ है जो तंग रास्ता हो, जिस रास्ते के दोनों जानिब दोनों अतराफ में कांटेदार झाड़ियां हो। अमीरुल मोमिनीन से हजरत उबय बिन काब सवाल करते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन जब आप ऐसे रास्ते से पार हो रहे थे, ऐसे रास्ते को क्रॉस कर रहे थे, आप ऐसे रास्ते से गुजर रहे थे, तो गुजरने की कैफियत क्या थी, गुजरने की हालत क्या थी, गुजरने की हैयत क्या थी, गुजरने की सूरत क्या थी, हमें जरा बताइए। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, ए उबय बिन काब जब ऐसे रास्ते से गुजर रहा था जो तंग रास्ता था, जो चौड़ा और कुशादा नहीं था, उसके दोनों तरफ दोनों जानिब दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां थी, जब मैं गुजर रहा था तो मैंने अपने दामन को समेट लिया था और मैं अपने आप को बचाते हुए उस रास्ते से मैं पार हुआ, उस रास्ते को मैंने क्रॉस किया। उबय बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन तकवा की तारीफ मिल गई है, इसी का नाम तो तकवा, इसी को तो तकवा कहते हैं। यानी जिस तरह से कांटेदार झाड़ियों से गुजरते वक्त, कांटेदार रास्ते से गुजरते वक्त अपने आप को जो बचाते हुए उस रास्ते को पार किए हैं, इसी तरह से दुनिया में बहुत सारे कांटे हैं, यानी दुनिया में बहुत सारे गुनाह हैं। कुफ्र का गुनाह है, जो निफाक का गुनाह है, शिर्क का गुनाह है, गिबत का गुनाह है, चुगली का गुनाह है, गाली का गुनाह है, तोहमत का गुनाह है, नाक माल खाने का गुनाह है, नाक कत्ल करने का गुनाह है, चोरी का गुनाह है, जिना का गुनाह है, झूठ का गुनाह है। दुनिया में जितने भी गुनाह हैं, अगर उन गुनाहों से बच गए, दुनिया के सारे कांटों से बच गए, यही तो तकवा, इसी को तकवा कहते हैं, इसको बचने वालों को मुत्तकी और परहेजगार कहते हैं। मालूम क्या हुआ कि तकवा कहते हैं दुनिया के कांटों से बच जाना, यानी दुनिया के गुनाहों से बचना। कदम कदम पर गुनाह है, आपको तमाम गुनाहों से बचना होगा अगर आप मुत्तकी और परहेजगार बनना चाहते हैं। और मुत्तकी और परहेजगार के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, उइद्दत लिल मुत्तकीन, मैंने मुत्तकियों के लिए जन्नत तैयार करके रखा है। मेरे भाइयों, मुत्तकी लोग कौन होते, आगे बढ़िए। कुरान करीम से सवाल करते हैं, ऐ कुरान हमें बताओ कि मुत्तकी किसको कहते हैं, मुत्तकी की सिफात क्या है, मुत्तकी लोगों की क्वालिटियां क्या है, मुत्तकी लोगों की खूबियां क्या है, कुरान हमें बताओ। कुरान हमें जवाब देता है कि देखो मुत्तकी किसको कहते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह फरमाता है ये कुरान हकीम वो किताब है जिसके अंदर शक और शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी इस कुरान पर ईमान लाना होगा, इस मुक़द्दस किताब को तस्लीम करना होगा। ये अल्लाह तबारक व तआला से नाजिल किया गया है, ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल किया गया है, ये किताब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल की गई है। इस पर ईमान रखना होगा, इस पर आपको यकीन रखना होगा कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये रब्बे कायनात का कलाम है। और इस कुरान पर आपको अमल करना होगा। इस कुरान के अंदर जो अहकामात बतलाए गए हैं, जो इरशादात बतलाए गए हैं, जो फरमादात बतलाए गए हैं, उस पर आपको अमल करना होगा। अपनी जिंदगी में उन अहकामात को जो ऐलाने होंगे, फिर अल्लाह तबारक व तआला जो फरमाता हुदल लिल मुत्तकीन,
ये कुरान मुत्तकियों के लिए हिदायत है। ये कुरान मुत्तकियों को सीधा रास्ता बताता परहेजगारों को देखो ये सीधा रास्ता है, ये गलत रास्ता है। मुत्तकी लोगों की रहनुमाई करता है, मुत्तकी को लोगों को सीधा रास्ता दिखलाता है, राह रास्ते पर गामजन करता है। या अल्लाह तबारक व तआला ने खास तौर से मुत्तकियों की तारीफ और खासियत बतलाते हुए ये फरमा रहा कि ये कुरान मुत्तकियों के लिए हिदायत है, जबकि कुरान तो पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। ये मुत्तकी लोगों का मकाम और मर्तबा यहाँ बढ़ता है, उनकी फजीलत बढ़ जाती है, उनका मकाम और मर्तबा बढ़ जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए खास जिक्र फरमाया, बयान किया कि कुरान उनकी हिदायत के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए ये कुरान है। कुरान मेरे भाइयों, ये कुरान मुत्तकियों के लिए हिदायत है। मुत्तकी लोगों की क्वालिटी क्या है, उनकी खूबियां क्या है, उनकी सिफात क्या? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मुत्तकी लोग तो वो लोग होते हैं, परहेजगार लोग वो होते हैं जो गैब चीजों पर ईमान रखते हैं, अनदेखी चीजों पर ईमान रखते हैं। जिसको नहीं देखा उन चीजों पर ईमान रखता है। अल्लाह को नहीं देखा लेकिन ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा माबूद बरक है, एक इलाह है, हमारा माबूद है, वही हमारा माबूद है, वही हमारा इलाह है, वही इबादत के लायक है, उसके अलावा कोई हमारा इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं। और इसके इकरार करने के बाद, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने के बाद, रब की रुबूबियत को तस्लीम करने के बाद, रब की उलूहियत और अस्मा व सिफात को तस्लीम करने के बाद, इकरार करने के बाद, इतराफ करने के बाद रब की इबादत करता है, रब की बंदगी करता है, रब की रियाजत करता है, अनदेखी चीजों पर ईमान लाता, अल्लाह तबारक व तआला को नहीं देखा है, यकीन रखता अल्लाह तबारक व तआला हमारा है, वो हाजिर और नाजिर है, वो रब जो है। तो मुत्तकी लोगों की ये पहचान बताई गई, ये अलामत बताई गई, ये निशानी बताई गई कि वो गैब की चीजों पर ईमान रखते हैं। अल्लाह को नहीं देखा, ईमान है कि अल्लाह हमारा रब है। जन्नत को नहीं देखा लेकिन जन्नत पर ईमान है कि जन्नत बराक है। जहन्नम को नहीं देखा लेकिन जहन्नम पर ईमान है कि जहन्नम बराक है। तो मुत्तकी लोगों की सिफत बताई जा रही है कि गैब चीजों पर ईमान रखते हैं। मुत्तकी लोग ऐसे होते हैं कि वो गैब की चीजों पर ईमान रखते हैं। जन्नत को नहीं देखा लेकिन ईमान है कि जन्नत बराक है। जहन्नम को नहीं देखा लेकिन ईमान है कि जहन्नम बराक है। फरिश्तों को नहीं देखा लेकिन ईमान है कि जो फरिश्ते भी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूकात में से एक मखलूक है। मेरे भाइयों, फिर अल्लाह तबारक व तआला मुत्तकी लोगों की एक और सिफत बतलाता है, एक और सिफत बयान फरमाता है और फरमाता मुत्तकी लोग वो होते हैं वो युक़ीमूनस सलात। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता मुत्तकी लोग वो होते हैं जो नमाज कायम करते हैं। और मेरे भाइयों, नमाज कायम भी करते हैं और अपने घर वालों को भी नमाज कायम करने का हुक्म भी देते हैं। नमाज ऐसी चीज है जो रब से करीब करने का जरिया है। इंसान सजदे में जाता है, नबी अकरम फरमाते हैं कि बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब बंदा सजदा में होता है। अल्लाह तबारक व तआला का सबसे ज्यादा करीब होता है, कुर्बत का जरिया पा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत उसको नसीब होती है। मेरे भाइयों, ये मुत्तकी लोगों की सिफत बताई जा रही है कि वो जो है नमाज कायम करते हैं। नमाज ऐसी चीज है जिसमें बंदा पांचों नमाजों में अपने रब से कलाम करता, अपने रब से जो है बात करता है, गुफ्तगू करता है, सरगोशी करता है। इसलिए ये मुत्तकी लोगों की सिफत है। रोजा रख कर क्या मुत्तकी और परहेजगार बन गए हैं? आप इसी पर डटे रहे, जमे रहे, आए रहे, यानी रमजान मुबारक के बाद भी अब नमाज कायम करते रहे, क्योंकि ये मुत्तकी लोगों की सिफत बताई जा रही है। और रोजा रखने वाले मुत्तकी होते हैं, यानी रोजा रखने वाले रमजान मुबारक में भी नमाज पढ़ा करते थे और रमजान मुबारक के बाद भी अगर नमाज पढ़ते हैं तो यकीन मानिए कि वही मुत्तकी है, वही परहेजगार है, वही रब से डरने वाले, उसी के दिल के अंदर रब की जो है रब का खौफ हो,
اس के अंदर होगा, रब का डर उसी के अंदर होगा। अल्लाह तबारक व तआला मुत्तकी लोगों की सिफत आगे फरमाता है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मुत्तकी लोग वो होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया है, जो दौलत दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतों से नवाजा है, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में जो है सर्फ करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। मस्जिद की तामीर हो रही है, उसमें हिस्सा लेते हैं। आज जिस तरह से हमारे मुसलमान जो इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं, ये मुत्तकी लोगों की सिफत है। आप जो है इस बात का जो है सबूत दे रहे हैं कि आप मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, अब अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, अल्लाह की राह में दे रहे हैं। आप अल्लाह तबारक व तआला को जो माल दे रहे हैं, ये सदका तो खैरात कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता मेरे बंदो तुम कर्ज हंसना अल्लाह तबारक व तआला को दो, बेहतरीन कर्ज अल्लाह तबारक व तआला को दो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इसके बदले में बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। और रब के यहाँ बेहतरीन बदले से मतलब है आपको जन्नत अता फरमाएगा, आपके लिए कामयाबी होगी, आपके लिए निजात होगी। तो मुत्तकी लोग होते हैं जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अपना माल खर्च करते हैं, रुपये की शक्ल में जो है माल, अनाज वगैरह की शक्ल में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। आप इसका सबूत पेश कर रहे हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला मुत्तकी लोगों की एक और सिफत बतलाता फरमाता है, मुत्तकी लोग वो होते हैं, परहेजगार लोग होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल की है, जो कुरान नाजिल किया है, उस पर जो है ईमान रखते हैं। मुत्तकी लोग परहेजगार वो लोग होते हैं जो कुरान करीम से पहले जो किताबें नाजिल की गई है, जो सहीफे नाजिल किए गए हैं, उन सहीफों पर, उन किताबों पर भी ईमान रखते हैं। तौरात पर भी ईमान रखते हैं, ज़बूर पर भी ईमान रखते हैं, इंजील पर भी ईमान रखते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो आसमानी किताबें नाजिल की है, उन किताबों पर भी ईमान रखते हैं। ये मुत्तकी लोगों की क्वालिटी बयान की जा रही है, ये मुत्तकी लोगों की सिफात बयान की जा रही है, ये मुत्तकी लोगों की खूबियां बयान की जा रही है। मेरे भाइयों, फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाता है मुत्तकी लोगों की सिफत तो ये है, वो जो है वो आखिरत पे ईमान रखते हैं, वो क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। और क़यामत के दिन पर ईमान रखने का मतलब तो ये है, मुत्तकी लोगों की सिफत बताई जा रही है, क्वालिटी बताई जा रही है, पहचान बताई जा रही है मेरे भाइयों कि आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। और क़यामत के दिन पर ईमान रखने का मतलब यह है कि आखिरत की तैयारी करते हैं। जिस दुनिया में जो अल्लाह तबारक व तआला ने 60-70 साल जिंदगी जो अता फरमाई है, इसमें रह करके आखिरत की तैयारी करते हैं, वही अक्लमंद है जो इस दुनिया में रह करके आखिरत की तैयारी करते हैं, आखिरत की खेती करते हैं, आखिरत के बैंक में जो अपने अमाल नामा जो नेक अमाल को जो उसमें डालते रखते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकी लोगों के सिफात बतलाने के बाद सर्टिफिकेट देता, सर्टिफिकेट सुनाता है कि मुत्तकी लोग खैर चीजों पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो किताबें नाज़िल की है उस पर ईमान रखते हैं, क़यामत के दिन पर भी ईमान रखते हैं। अब अल्लाह फरमाता उलाइका लहुम हुदन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही वो मुत्तकी लोग हैं, यही वो परहेजगार लोग हैं, यही मुत्तकी वो लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है यही लोग अपने रब की हिदायत पर है, अपने रब के सीधे रास्ते पर है, यही लोग बना के ये लोग सीधे रास्ते पर है। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही वो लोग हैं जो कामयाब होंगे, यही वो लोग हैं जो नजात पाएंगे, यही वो लोग हैं जो जन्नत में जाएंगे। मेरे भाइयों, अगर आप कामयाबी चाहते हैं, अगर आप नजात चाहते हैं, अगर आप फलाह बहबूद चाहते हैं, जन्नत में जाना चाहते हैं, इन क्वालिटियों को अपना लीजिए, मुत्तकी बन करके दिखलाइए। आपने रमजान मुबारक का रोजा रख करके मुत्तकी परहेजगार बन गए। आप रब करीम को ईमान रखिए। ये 5 क्वालिटियां जो बताई गई है,
आप इन पर जो ईमान रखें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और रियाजत करें। मुत्तकी लोगों की एक पहचान तो ये बताई गई है, जो मुत्तकी परहेज़गार होते हैं वो किसी पर जुल्म नहीं करते हैं, वो किसी को धोखा नहीं देते हैं, वो किसी पर ज़ियादती नहीं करते हैं। इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, इमाम मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ किताबुल बिर वसिला की रिवायत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु व ला यखज़ुलुहु व ला यहक़िरुहु अत्तक़वा हुना। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, दीनी भाई, इस्लामी भाई है। और जब इस्लामी भाई है, दीनी भाई है, तो इनके अंदर खूबियां क्या होनी चाहिए, इनके अंदर क्वालिटियां क्या होनी चाहिए। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यज़लिमु, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म नहीं करता है। जुल्म करने का मतलब ये है, तकलीफ नहीं देता है, अजियत नहीं पहुंचाता है, मामूली सी मामूली तकलीफ नहीं देता है, किसी पर जुल्म नहीं करता है, नाजायज तरीके से किसी का माल नहीं हड़पता है, नाजायज तरीके से गलत तरीके से किसी का माल नहीं हड़पता है, नाजायज तरीके से किसी की जमीनों जायदाद नहीं हड़पता है, नाजायज तरीके से किसी को कत्ल नहीं करता है, नाजायज तरीके से किसी की जान नहीं लेता है, नाजायज तरीके से बगैर कसूर बिला कसूर किसी को नहीं मारता है। यानी जुल्म की जो शक्लें, उन शक्लों से बचते, इज्तिनाब करते। इमाम कायनात फरमा रहे हैं, ला यज़लिमु, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म नहीं करता है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता है, अजियत नहीं पहुंचाता, इज़ा नहीं देता है। फिर नबी अकरम फरमाते हैं कि इसी तरह से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जलील नहीं करता है, रुसवा नहीं करता है। आज मुस्लिम समाज के अंदर ये बीमारी आ चुकी है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को नीचा दिखलाने के लिए जो कुछ करना होता है, जिससे हद से गुजरना पड़ता है, उस पर वो गुजर जाता है। ये मुसलमानों की निशानी नहीं बताई गई है, ये मुसलमानों की पहचान नहीं बताई गई है, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जो है जुल्म नहीं करता, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को रुसवा नहीं करता, बदनामी नहीं करता, बेइज्जती नहीं करता है। फिर अल्लाह के नबी फरमाते, वला याक़िरू, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को हकीर नहीं समझता है, मामूली नहीं समझता है, हाँ कमतर घटिया नहीं समझता है। आज समाज में देखा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला जिसको थोड़ी सी दौलत दे देता है, या अल्लाह तबारक व तआला जिसको ताकत दे देता है, वो ताकत के बलबूते पर अपने आप को जो है अपने ऊपर जो फख्र करता है, अपने आप को बड़ा समझने लगता है, अपने आप पे फख्र करने लगता है, तकब्बुर उसके अंदर आ जाता है, उसके अंदर गुरूर आ जाता है। मेरे भाइयों, नबी अकरम फरमाते ये मुसलमानों की निशानी नहीं, ये मुसलमानों की पहचान है। ठीक, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सेहतमंद बनाया, आप हट्टे कट्टे हैं, आप सेहत तंदुरुस्ती है, आपका कद ऊंचा है, आपका बड़ा है, आपका मकाम मर्तबा ठीक है, लेकिन आप दूसरों को कमतर घटिया ना समझे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से बताता है, ए मेरे नबी, हम लोगों को ऐलान कर दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक या दुनिया वालों के भी नजदीक अगर कोई बुलंद मकाम हासिल कर सकता है, वो तकवा की बुनियाद पर हासिल कर सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जुल्म नहीं कर सकता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को ज़लील रुसवा नहीं कर सकता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को हकीर कमतर घटिया नहीं समझ सकता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रावी हदीस बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीने की तरफ इशारा कर रहे थे। आपने 3 मरतबा अपने सीने की तरफ इशारा करते हैं, अत्तक़वा हुना, अत्तक़वा हुना, अत्तक़वा हुना। तकवा सीने में होता है, तकवा सीने में होता है, परहेज़गारी सीने में होती है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बिहस्बि मिन शर्रि अन यक़रा खाल मुस्लिम कुल्लु मुस्लिम अलल मुस्लिम हरामुन दमु व मालु व इर्ज़ुहु। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक मुसलमान के लिए बुरा होना इतना ही काफी है कि अगर वो किसी भी मुसलमान को हकीर समझता है,
किसी भी मुसलमान को हकीर अंतर समझता है, समझ लो समाज और सोसाइटी और मोहल्ले और गांव का सबसे बुरा इंसान है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से ये अल्फाज निकला है। आपने फरमाया कि किसी भी मुसलमान के लिए बुरा होना इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। तो किसी भी मुसलमान भाई को हकीर समझे, घटिया समझे, अपने आप को बड़ा समझे, अपने आप पर फख्र करे, अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगे। फिर नबी अकरम फरमाते एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर हराम है। क्या हराम है? हराम ये उसका खून बहाना हराम है, दम हो उसका खून बहाना हराम है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का खून नहीं बहा सकता है, नाखून नहीं बहा सकता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम करार दिया है कि किसी भी मुसलमान का खून नहीं बहा सकते। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसका माल हराम है। कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान का माल नहीं नाजायज तरीके से गस्ब नहीं कर सकता, नाजायज तरीके से हड़प नहीं सकता, नाजायज तरीके से खा नहीं सकता है। फिर नबी अकरम फरमाते हैं एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत को पामाल नहीं कर सकता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत को दागदार नहीं कर सकता, तार नहीं कर सकता। किसी भी मुसलमान की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, किसी भी मुसलमान की इज्जत के साथ जो है खिलवाड़ नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, मुत्तकी लोगों की सिफत बताई जा रही है। जो मुत्तकी होते हैं, जो परहेजगार होते हैं, उनके अंदर ये खूबी होनी चाहिए, उनके अंदर ये सिफात होनी चाहिए कि वो किसी पर जुल्म ना करे, किसी पर ज़्यादती ना करे और किसी को हकीर व मामूली ना समझे। मेरे भाइयों, तकवा वो चीज है, तकवा वो चीज है जिसकी वजह से इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक मुअज़्ज़ज़ बन जाता है, मुकर्रम बन जाता है, वो इज्जतदार बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल अत्क़ाकुम। अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगों, ऐ दुनिया वालों, सुनो सुनो, मैंने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, मैंने तुम्हें आदम से पैदा किया, मैंने तुम्हें हव्वा दोनों से पैदा किया। ऐ लोगों, और सुनो, फिर मैंने तुम्हारे लिए कबीले बनाए, तुम्हारे लिए कुम्बे बनाए, और मैंने तुम्हारे जो कबीले खानदान बनाए। इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, इसमें कोई बरतरी नहीं है, इसमें कोई फजीलत नहीं, इसमें कोई फौकियत नहीं है। हाँ सुनो, मैंने सिर्फ इसलिए कबीले कुंबे बनाए लिताअरफ़ू, ताकि तुम्हारी मार्फत हो सके, तुम्हारी पहचान हो सके, ये फला भी फला कबीले का है। टाइटल लग जाए, लेबल लग जाए, ये पहचान हो जाए, पहचान हो सके, ये मार्फत हो जाए, ये जानकारी हो जाए, ये निशान लग जाए कि ये फला कबीले का है। एक अब्दुल्ला, कई अब्दुल्ला के नाम से लोग हैं, ये पता चल जाए फला कबीले के हैं, ये सैयद है, ये फला फला कबीले के हैं। ये पहचान के लिए मैंने जो कबीले कुंबे बनाए। सुनो, मैंने ये कबीले कुंबे बनाए सिर्फ पहचान के लिए, इसमें ऊंच नीच नहीं है। हाँ, एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है जिसकी बिना पर इंसान का मकाम मर्तबा बढ़ जाता है, इज्जत बढ़ जाती है, और वह इन्ना अक्रमकुम इंदल अत्क़ाकुम। अगर अल्लाह के नजदीक कोई बड़ा बनना चाहता है, अगर अल्लाह के नजदीक जिसका मकाम मर्तबा अपना मकाम मर्तबा बढ़ाना चाहता है, वो अपने अंदर तकवा पैदा कर ले, अपने अंदर परहेज़गारी पैदा कर ले, गुनाहों से बचते रहे, दुनिया के कांडों से बचते रहे, दुनिया के गुनाहों से बचते रहे। आप जो है अल्लाह के नजदीक मुअज़्ज़ज़ बन जाएंगे, मुकर्रम बन जाएंगे, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। यही बात इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया था। मुस्नद अहमद की सही हदीस है। अल्लामा नासिरुल अलबानी इस हदीस पर सेहत का फतवा लगाते हैं, यानी ये हदीस सही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या अय्युहन नास, ऐ लोगों, अला खबरदार, इन्ना रब्बकुम वाहिदुन, तुम सबका रब एक ही है, एक ही है। इमाम कायनात लोगों को खिताब कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं और बता रहे हैं, ऐ लोगों, ऐ मेरी उम्मतियों, तुम सबका रब एक ही है। व इन्ना बाकुम वाहिदुन, और सुनो सुनो, तुम सबका बाप एक ही आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। जब रब एक है, बाप एक है, सुनो, अल्लाह ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन। ऐसी सूरत में जब रब एक हो, बाप एक हो, तो
सुनो, इसमें किसी पर कोई फजीलत नहीं है, ना अरबी को अजमी पर कोई फजीलत है, कोई बरतरी हासिल है, कोई फौकियत नहीं है। यहाँ तरजीह नहीं दी जाएगी, यहाँ मकाम और मर्तबा नहीं बढ़ाया जाएगा कि कोई अजमी है कोई अरबी है, नहीं नहीं। नबी अकरम फरमाते हैं मुस्लिम अहमद के अल्फाज, ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमीन अला अरबिय्यिन वला लिअहमर अला अस्वदा वला अस्वदा अला अहमर। नबी अकरम फरमाते हैं ना अरबी को अजमी पर कोई फजीलत, ना अजमी को अरबी पर कोई फजीलत, ना जो काले को गोरे पर फजीलत, ना गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं, नहीं नहीं, किसी पर कोई फजीलत नहीं। लेकिन एक ऐसी चीज है जो इंसान का मकाम मर्तबा बढ़ाती है, और फरमाते इल्ला बित्तक़वा, वो तकवा है, वो परहेज़गारी है। जिसके अंदर तकवा आ गया, जिसके अंदर परहेज़गारी आ गई, जो दुनिया के गुनाहों से बचते रहे, इज्तिनाब करते रहे, पास रहते रहे, एहतियात बरतते रहे, अपने दामनों से जो है बचाते रहे, वही चीज है जो इंसान का मकाम मर्तबा बढ़ा देता है। जो मुत्तकी है, अल्लाह वाले हैं, इसका मकाम मर्तबा बढ़ जाता है। मेरे भाइयों, गुनाहों से बचते रहे, इज्तिनाब करते रहे, आपका मकाम मर्तबा बढ़ जाएगा। अगर कोई अपना मकाम मर्तबा बढ़ाना चाहता है अल्लाह के नजदीक, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक, तो आपके अंदर तकवा होना चाहिए। रमजान मुबारक में आपके अंदर जो तकवा आया रोजा रख करके उसको बरकरार रखें, उस पर डटे रहें, जमे रहें। यकीन मानिए आपका मकाम और मर्तबा बढ़ेगा। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, अगर आपके अंदर तकवा आ जाए, परहेज़गारी आ जाए, मेरे भाइयों, तो यकीन मानिए अगर आप किसी भी मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे, किसी भी परेशानी में फंस जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला कोई सबील पैदा फरमा देगा, कोई रास्ता हमार पैदा फरमा देगा। कुरान तो बतलाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ करता है, जिसके दिल के अंदर तकवा आ जाए, गुनाहों से बचने लगे, मेरे भाइयों, जिसके अंदर तकवा आ जाए, परहेज़गारी आ जाए, अगर किसी भी मुसीबत में मुब्तला हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसको उस मुसीबत से निजात दिलाता है। मुख्तसर तौर पर मैं बताता हूँ, बुखारी शरीफ किताबुल अंबिया के अंदर एक वाकया मौजूद है। नबी अकरम फरमाते बनी इस्राइल के अंदर 3 आदमी थे, एक सफर को निकलते, जोरदार बारिश होने लगती है, मूसलाधार बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए वो पहाड़ के एक गार में छुप जाते हैं। इस कदर जोरदार या मूसलाधार बारिश हो रही थी कि जो है पहाड़ से चट्टान लुढ़क उस गार के मुंह पर गिर पड़ती है, और इस तरह से वो तीनों उसके अंदर बंद हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। तीनों ने असबाब इख्तियार किए लेकिन कामयाबी नहीं मिली, निजात नहीं मिली। उन लोगों ने तदबीरें की, उस चट्टान को धक्का देने की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। फिर आपस में मशवरा करते हैं, ये राय करते हैं कि देखो हमें शायद एक कोई ऐसा अमल आज याद किया जाए, आज रब का वास्ता दिया जाए, आज उसी अमल का वास्ता पेश किया जाए कि जो खालिस अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए किया हो, जिसमें रिया न भूलना हो, दिखावा ना हो, जो अमल हमने सिर्फ और सिर्फ रब कायनात की रजामंदी रजादोई के लिए हमने वो अमल किया है, आज वो अमल याद किया जाए। नबी अकरम फरमाते हैं उनमें से एक आदमी ने कहा, अल्लाह मेरी एक जज़ात थी जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था, बेहद मोहब्बत करता था, जिस तरह से एक औरत मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत थी अल्लाह, मैंने उसे अपनी दिल की आग बुझाना चाहता था लेकिन वो इसके लिए आमादा तैयार रेडी नहीं हुई। इत्तेफाक का वाकया है, एक दफा का वाकया, कहा साली का जमाना पड़ गया, माशी हालत खराब हो गई, मजबूर होकर वो मेरे पास आती है और जो है कुछ कर्ज उधार अशरफियां जो है मांगती है। मैंने उसे इस शर्त पर जो वो अशरफियां या वो दिनार मैंने दिया कि वो मेरे दिल की ख्वाहिश को पूरी करेगी, वो तैयार हो जाती है। वो वक्त आ जाता है जो वक्त मुतय्यन किया गया था, वो जगह भी उस जगह पर आ जाती है जो जगह मुतय्यन की गई थी। फिर मैं उस पर काबू पा गया, मैं उसके साथ बदफेली बदकारी ज़िना करने का इरादा किया, अपने दिल की भड़ास को बुझाना चाहा। उस वक्त अल्लाह तेरा नाम वो लेती है और कहती तक़िल्लाह, अल्लाह के बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर, और
और ये मरना तू ना कर, ये तेरे लिए हलाल नहीं है। अल्लाह जब तेरा नाम उस औरत ने लिया, अल्लाह तेरा नाम मैं सुन करके उस गुनाह से बच गया, मैंने वहाँ तकवा इख्तियार किया, मैंने वहाँ परहेज़गारी दिखाया, अल्लाह मैं बदकारी बदफेली से बच निकला। अल्लाह जो मैंने अशरफियाँ दी थी, मैंने उन अशरफियों को भी मैंने छोड़ दिया, बिला मुआवजा मैंने छोड़ दिया। मेरे भाइयों कहने का मतलब ये है, वो अल्लाह का हवाला देता है, अल्लाह उस अमल का हवाला देता है, कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ये अमल अगर मैंने तेरी रजा दी, तेरी खुशनुदी के लिए मैंने किया, तो चट्टान को हटा दे, अल्लाह चट्टान को हटा दे। अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी की दुआ को कबूल फरमाया और उन दोनों की भी दुआओं को कबूल फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला उन तीनों को से निजात फरमाया। मालूम क्या हुआ कि अगर हम और आप अगर मुसीबत से बचना चाहते हैं, परेशानियों से बचना चाहते हैं, तमाम परेशानियों और मुसीबतों से बचने का एक हल ये है कि आपके अंदर का तकवा आ जाता है, परहेज़गारी आ जाती है। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, तो यकीन माने कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी परेशानियों से हमें निजात जरूर देगा। हमारे ऊपर जो जुल्म सितम की बिजली गिर रही है, अगर हम इससे निजात चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो हमें आपको चाहिए कि तकवा इख्तियार करें। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, मुझे कहा गया कि वक्त जो है आपका खत्म हो चुका, हमारे सामने उलमा कराम भी क्या तशरीफ ला चुके हैं और भी दीगर हजरात भी हमारे सामने बातें रखेंगे। हम यही से अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों के अंदर तकवा और परहेज़गारी पैदा करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हम तमाम लोगों को मुत्तकी और परहेज़गार बना दे। अल्लाह तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह लअल्लकुम तत्तकून जो बताया, जिस मकसद के लिए रोज़े रखे, उस मकसद को तू कबूल फरमा ले। अल्लाह उस मकसद में जो उतार, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।